Good evening and welcome to the Saturday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic news of the day. Today we'll also be taking calls from you, our listeners, and any queries that you may have on business, economic and stock market matters. But do remember that we don't address stock or company specific queries. The numbers to call us on are 23314444, 23717117 and 23717106. And those of you who would be calling us from outside Delhi, please prefix 011. My name is Rajesh Lake, and with me is my co-anchor in Hindi, Prachi Priya. शुभ संध्या, नमस्कार, अभिवादन। आप जुड़ गए हैं मार्केट मंत्र से, जहां हम आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार की ताजा खबरों पर चर्चा करने वाले हैं। आज शनिवार है और आज हम आपके प्रश्नों को भी सीधे प्रोग्राम में शामिल करेंगे। सवाल पूछने के लिए आप हमें इन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। ये नंबर है 23314444, 23717117 और 23717106। दिल्ली से बाहर के जो श्रोता हैं वो इन नंबरों से पहले दिल्ली का एसटीडी कोड 011 भी डायल करें। लेकिन याद रखें कि हम किसी खास शेयर या कंपनी से जुड़े सवालों के जवाब इस कार्यक्रम में नहीं दे पाएंगे। आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ आमंत्रित हैं वरिष्ठ आर्थिक विशेषज्ञ, हम सबके प्रिय शरद कोहली। साथ ही चर्चा को और रोचक, ज्ञानवर्धक और तार्किक रुख देने के लिए आमंत्रित हैं वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार दीपशिखा सिकरवार। शरद, दीपशिखा, हमारे सभी श्रोताओं की तरफ से और हमारी तरफ से भी मार्केट मंत्र में आपका बहुत बहुत अभिनंदन। वार्म वेलकम शरद एंड दीपशिखा। धन्यवाद प्राची, धन्यवाद राजेश और सभी श्रोताओं को प्रणाम। धन्यवाद प्राची एंड थैंक यू राजेश। चर्चा शुरू करेंगे, मगर उससे पहले आइए सुने हेडलाइंस। India and US announce interim trade agreement. Prime Minister Narendra Modi says India-US trade deal framework will now open opportunities for Indian farmers and entrepreneurs. And domestic benchmark indices jump about 1.5% this week. And in the US, the Dow crosses 50,000 mark. भारत और अमेरिका ने अंतरिम व्यापार समझौते की घोषणा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत अमेरिका ट्रेड डील फ्रेमवर्क से भारतीय किसानों और उद्यमियों के लिए नई संभावनाएं उभरेंगी। और इस सप्ताह देश के प्रमुख सूचकांकों में लगभग 1.5% का उछाल दर्ज किया गया। वहीं अमेरिका के डाउ 50,000 अंक से ऊपर बंद हुआ। Here's a disclaimer. The views and opinions expressed by the experts in this program are their own and not that of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision. We now move on to the first headline story. India and US today announced that they have reached a framework for an interim agreement regarding reciprocal and mutually beneficial trade. Commerce and Industry Ministry shared the India-US joint statement, which said that the framework reaffirms the country's commitment to the broader US-India bilateral trade agreement (BTA) negotiations launched by Prime Minister Narendra Modi and US President Donald Trump on 13th of February last year, which will include additional market access commitments and support more resilient supply chains. The joint statement said India will eliminate or reduce tariffs on all US industrial goods and a wide range of US food and agricultural products. These include dried distillers, grains, DDGs, red sorghum for animal feed, tree nuts, fresh and processed fruit, soybean oil, wine and spirits, and additional products. The US will apply a reciprocal tariff rate of 18% on goods of India, including textile and apparel, leather and footwear, plastic and rubber, organic chemicals, home decor, artisanal products, and certain machinery. The US will also remove tariffs on certain aircraft and aircraft parts of India imposed to eliminate threats to national security.
Both countries have committed to provide each other preferential market access in sectors of respective interest on a sustained basis. India and US will establish rules of origin that ensure that the benefits of the agreement accrue predominantly to both countries. The two countries will address non-tariff barriers that affect bilateral trade. India has agreed to address long-standing barriers to the trade in US medical devices. India has also agreed to address long-standing non-tariff barriers to the trade in US food and agricultural products. India and the US will work towards further expanding market access opportunities through the negotiations of the BTA. US has affirmed that it intends to take into consideration during the negotiations of the BTA India's request that the US continue to work to lower tariffs on Indian goods. The joint statement said India intends to purchase $500 billion of US energy products, aircraft and aircraft parts, precious metals, technology products and coking oil over the next 5 years. India and the United States will significantly increase trade in technology products, including graphics processing units, GPUs, and other goods used in data centers, and expand joint technology cooperation. Both nations have committed to address discriminatory or burdensome practices and other barriers to digital trade and to set a clear pathway to achieve robust, ambitious, and mutually beneficial digital trade rules as part of the BTA. How enthusiastic are you, Sharad, on this interim agreement that has come up? Quite enthusiastic, Rajesh, and I think ever since 50% tariff was imposed on the Indian, goods over there was a lot of flutter amongst the textiles, gems and jewelry, leather, footwear industry, because there were loads of inventory which were piling up, and of course, they were struggling to match up to the prices when we compare ourselves to Bangladesh, Vietnam, and Indonesia and other countries. I think this is going to open, and I must inform here, Rajesh, that for the people who are wondering that we would be subject to 18% tariff when the goods land there, I have to tell you that half of the goods, which is the total Indian export to the US currently, is about $80 to $85 billion. Half of it is going to be zero tariff. So it's not that on an entire block of $80-85 billion that we're currently doing, although it's going to grow phenomenally after this. So is it that on certain goods it will be 18%? Yes, because the goods which you named just now, they may be subject to 18%, but there would be a lot of stuff which was going to land there tariff-free, just the way we've done, like more than 90% of the goods in the India-EU deal were zero tariff. So I think this opens absolutely phenomenal opportunities for Indian exporters, both for the ones who were already exporting, and I think for the newer ones who are willing to explore the global market, especially the MSMEs, which cross my mind without a doubt. जी, रुक करते हैं अगली खबर की तरफ, जो कि इसी बात से जुड़ी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत अमेरिका अंतरिम व्यापार समझौता फ्रेमवर्क को एक बड़ी खुशखबरी बताया है। उन्होंने दोनों देशों के बीच मजबूत संबंधों के प्रति व्यक्तिगत प्रतिबद्धता के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को धन्यवाद भी दिया है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये फ्रेमवर्क दोनों देशों के बीच बढ़ती साझेदारी, विश्वास और गतिशीलता को दर्शाता है। श्री मोदी ने कहा कि ये समझौता देश के मेहनती किसानों, उद्यमियों, लघु और मध्यम उद्यमों, स्टार्टअप्स और मछुआरों के लिए भी नए अवसर खोलकर मेक इन इंडिया पहल को मजबूत करेगा। उन्होंने कहा कि इससे महिलाओं और युवाओं के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन होगा। नई दिल्ली में आज भारत अमेरिका के संयुक्त वक्तव्य पर संवाददाताओं से बातचीत में श्री गोयल ने कहा कि चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश और वियतनाम सहित पड़ोसी देशों की तुलना में भारत का शुल्क कम है। श्री गोयल ने कहा कि ये समझौता देश के कृषि और डेयरी क्षेत्र की रक्षा करता है। इस समझौते के अंतर्गत मसालों, चाय, कॉफी, काजू, छोटा अखरोट, एवोकाडो, केला, आम, कीवी और पपीता जैसे कृषि उत्पाद पर अमेरिका में कोई शुल्क नहीं लगेगा। श्री गोयल ने बताया कि व्यापार समझौते को देश के सभी क्षेत्रों में स्वागत किया गया है।
श्री गोयल ने यह भी कहा कि आने वाले समय में सरकार का उद्देश्य भारत अमेरिका के द्विपक्षीय व्यापार को 45 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचाना है। दीपशिखा जी, कैसे देखती हैं आप इसे? देखिए प्राची, अगर हम देखें कि भारत के जो निर्यात थे वो अभी तक 50% उस पर आयात शुल्क लगा हुआ था, तो उसके बाद अब आज से 18% आ गया है। और अब जो ये तो अंतरिम समझौता है, लेकिन आगे जिस डील की बात हो रही है उसमें भारत के तकरीबन 44 बिलियन जो है उसके ऊपर 0 या उससे थोड़ा 18 से कम और 0 उस 18 के बीच में उसके ऊपर शुल्क होगा। और ये भारत के जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनके कंपैरिजन में ये बहुत नीचे स्तर पर आ रहा है। तो भारत के निर्यात क्षेत्र के लिए एक बहुत बड़ा ये एक बूस्ट है, बहुत बल देगा निर्यातकों को। उसके अलावा अगर आप ओवरऑल डील देखें, भारत ने आयात के दिशा में जो कंसेशंस अमेरिका को दिए हैं वो कंसेशंस हैं जहां पे भारत को उन गुड्स की जरूरत है टेक क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी क्षेत्र में, चिप्स में, डिजिटल सर्विसेज में, कृषि में। भारत जो था अपने जो सेंसिटिव क्षेत्र थे, सेंसिटिव प्रोडक्ट्स हैं, उनको बचा पाया है, उनमें कोई ओपनिंग नहीं है, डेयरी में कोई ओपनिंग नहीं है। तो एक तरह से ये समझौता बहुत हद तक, जैसा कि प्रधानमंत्री ने कहा, एक बहुत बड़ी खुशखबरी है देश के लिए, क्योंकि ये 50% जो टैरिफ था ये पूरे अर्थव्यवस्था पर एक बहुत बड़ा एक नेगेटिव बनकर टंगा हुआ था, एक तलवार टंगी हुई थी हमारे ऊपर, ये अब हट गई है। We have two callers online with us, one from Delhi, other from Hisar. First we go to Praveen in Hisar. A warm welcome, Praveen. Welcome to Market Mantra. सर गुड इवनिंग। Good evening. सर मुझे सिर्फ छोटी सी एक बात पूछनी कि हेलो। हाँ जी पूछे। हाँ जी सर, मुझे सिर्फ यही पूछना था कि ये सिल्वर कितना ग्रो करेगी, कब तक ग्रो करेगी? मुझे लगता है आजकल सबसे ज्यादा चर्चित सवाल राजेश, प्राची और दीपशिखा यही है कि सिल्वर कब ग्रो करेगी। देखिए ये सवाल का जवाब सीधा देना, हालांकि आप मुझे याद है एक डिस्क्लेमर अनाउंस करते हैं, हम किसी कंपनी के विशेष के बारे में बात नहीं करेंगे। मुझे लगता है आगे से हमें मेटल्स का भी जिक्र करना चाहिए, हम किसी मेटल विशेष के बारे में बात नहीं करेंगे। पर चलिए, ये कोई निजी कंपनी नहीं है। देखिए सिल्वर 55%, प्रवीण हम आपको कुछ बेसिक जानकारी दे देते हैं। आपके सीधे सवाल का सीधा जवाब तो आप 10 बार भी पूछेंगे तो वो हमारे से निकालना मुश्किल होगा। पर 55% सिल्वर जो निकलता है खानों में से वो कंज्यूम हो जाता है आर्टिफिशियल डेटा इक्विपमेंट में, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, सोलर बैटरीज में, कुछ अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में। तो सिल्वर की शॉर्टेज महसूस होती है। पर मैं यहां पर प्रवीण का सवाल जहां से निकल के आ रहा है उस पर मैं फोकस करना चाहूंगा कि सिल्वर में कॉमेक्स में मेरे कुछ वहां पर मित्र हैं जिनको मैं जानता हूं, और वैसे भी डेटा पब्लिकली भी कुछ हद तक अवेलेबल होता है। बहुत हद तक इसमें स्पेकुलेशन हो रही है, जिसको हम हिंदी में सट्टेबाजी कहते हैं। हिंदी का टर्म उतना अच्छा नहीं है, मुझे लगता है अंग्रेजी वाला सुनने में बेहतर लगता है। तो वहां पर बहुत बड़े मात्रा में स्पेकुलेशन होती है। इसलिए आप ये जो इतना ज्यादा उछाल देख रहे हैं, बिल्कुल एक क्रेजी बॉल बचपन में मैं खेला करता था जी। तो वो क्या जहां से छोड़ते थे वापस वहीं आ जाती थी, उस बॉल में खासियत होती थी। मुझे ये मूवमेंट मुझे मेरी क्रेजी बॉल बचपन की याद दिलाती है कि बिल्कुल गिर के $70 से नीचे चला गया, वापस उठ के इस समय फिर $80 से ऊपर आ गया। तो मुझे लग रहा है बहुत ज्यादा स्पेकुलेशन है, कुछ डिमांड सप्लाई का गैप भी है, थोड़ी शॉर्टेज है। अब देखिए कब ग्रो करेगा, क्या करेगा, तो मुझे लगता है किसी ज्योतिषी वोतिषी से पूछना चाहिए क्योंकि ये डिमांड सप्लाई बेस्ड है, स्पेकुलेशन बेस्ड है। तो इसमें आप ऐसा कर सकते हैं प्रवीण, क्योंकि ये कहेंगे मेरे सवाल का जवाब तो मिला नहीं, आप ऐसा कर सकते हैं कि जो फैक्टर्स इनको ऊपर नीचे चलाते हैं उन फैक्टर्स पे आप नजर बना के रखिए। जियोपॉलिटिकल टेंशंस हैं, बड़े प्लेयर्स की बाइंग और सेलिंग है, इन पे अगर आप खबरें पर नजर बनाए रखिए। मार्केट मंत्रा सुनते रहे, आपको तो कुछ खबरें होमवर्क है। बिल्कुल नहीं, होमवर्क क्यों, मैं तो कहता हूं मार्केट मंत्रा सुनते रहे, उस पर तो सारे खबरों की चर्चा की जाती है, तो वहां से आपको इसका जवाब निकल पाएगा। हमारे से इसका जवाब निकालना बहुत कठिन होगा। शरद हमारे साथ दिल्ली से अगले कॉलर अमित जुड़ रहे हैं। अमित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, अपना सवाल पूछिए। हाँ, प्राची प्रिया मैडम, सभी को नमस्कार मैडम जी। नमस्कार। और शरद सर से मेरा प्रश्न ये है सर कि क्या अब मौजूदा परिदृश्य में जो वैश्विक जो अनिश्चितता थी वो काफी हद तक टल गई है? जैसे यूएस टैरिफ का हो गया, यूक्रेन वाला हो गया, वेनेजुएला वाला हो गया, कोई भी वैश्विक चीज है, या फिर अभी और भी कोई भूत बाकी है, जिन बाकी है? दूसरा सर प्रश्न ये है कि रक्षा क्षेत्र के लिए पिछले बजट के मुकाबले में इस साल ज्यादा पैसे आवंटित किया गया है, और उसके बावजूद सर
जो रक्षा क्षेत्र के जो शेयर्स है उसमें इतना नकारात्मक प्रदर्शन, कम से कम 20% की गिरावट सिर्फ और सिर्फ पिछले एक हफ्ते के दौरान, तो क्या अब ये संभलेगा सर रक्षा क्षेत्र के या रेलवे के शेयर? धन्यवाद सर। चलिए, आपने कहा अमित सब टल गया है, मैं इन्हीं का फ्रेज लेके चलता हूं। आपके मुंह में घी शक्कर, अगर ऐसा हुआ है, परंतु मुझे ऐसा बहुत ज्यादा नजर नहीं आता है कि हुआ है, क्योंकि रशिया यूक्रेन का जो कॉन्फ्लिक्ट है अभी भी बदस्तूर जारी है और ईरान की टेंशन्स पूरी तरह से अभी टली नहीं है। आपको शायद जानकारी है कि नहीं, उसकी पीस टॉक्स हो रही हैं, एक राउंड हो चुका है, कोई खास उसमें सक्सेस देखने को नहीं मिला। और आपने कहा कि टैरिफ वैरिफ भी सब हो चुका है, कहां हो चुका है? टैरिफ तो सब पर लग चुके हैं और जो बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं उनमें भी अभी काफी स्ट्रेस में है इकोनॉमिकली, तो अभी सब टेंशन। और क्या होता है अमित कि ये जो आपने चीजें बताई, ये सब ऊपर नीचे होती रहती है ईसीजी ग्राफ की तरह, तो इसको हम ये ना मान लें कि सब अभी टल चुका है। काफी हलचल अभी दुनिया में चल रही है। आपने डिफेंस बजट के शेयर्स की बात करी, बजट के बाद जबकि उसमें 15% की वृद्धि करी गई, उसके बावजूद जो है शेयर, देखिए मार्केट ओवरऑल जो मार्केट का फैब्रिक है वो थोड़ा सा पीछे नीचे को रहा है। जिस दिन पहली बार भारत यूएस ट्रेड डील की हुई थी, उस दिन को अगर हम छोड़ दें तो बाकी दिन मार्केट ने कोई खास ऐसा बहुत नोटिसेबल मूवमेंट नहीं दिखाया है। तो मुझे लग रहा है जैसे जैसे मार्केट का सेंटिमेंट इंप्रूव होगा, सबसे ज्यादा जो शेयर्स भागेंगे वो उन भागने वालों में से शायद डिफेंस का सेक्टर हो सकता है, शायद हो सकता है। और ये मुझे लगता है थोड़ा सा जियोपॉलिटिकल टेंशन्स पे भी निर्भर करता है कि जैसे जैसे जियोपॉलिटिकल टेंशन्स दुनिया में बढ़ती हैं तो डिफेंस की तरफ लोगों का ध्यान बढ़ता है, भारत की ऑर्डर बुक और बढ़ती है। तो हालांकि कोई बहुत अच्छा कारण नहीं है ऑर्डर बुक बढ़ने का, पर फिर भी मुझे लगता है कि थोड़ा इंतजार करिए अमित, बहुत जल्दी हमें किसी बात पे कंक्लूड नहीं करना चाहिए। दीपशिखा, would you like to comment something on this? बिल्कुल, शरद जी ने जैसा कहा कि जो जियोपॉलिटिकल जो वैश्विक परिस्थिति है वो एकदम अभी ऐसा नहीं है कि संकट टल गया। और ये तो जैसा कि आप बोल रहे थे कि जिन भूत जो टल गए, ये तो कहीं से भी पैदा हो सकते हैं। तो ईरान का मसला है और वो कितना लंबा समय खिंचता है, या यूक्रेन रशिया है, वो तो हम देख ही रहे हैं, इतने वर्ष से अब चल रहा है। तो ये संकट हैं और कितने भारी गहरे हो जाते हैं पता नहीं चलता, अचानक परिस्थिति बदलती है। लेकिन हाँ, यूएस ट्रेड डील जो भारत के ऊपर एक जो तलवार लटकी हुई थी, जैसा कि हम पहले बात कर रहे थे, वो टल गया। तो भारत की अर्थव्यवस्था के ऊपर एक जो नेगेटिव वो था, वो जरूर एक भूत टला है और वो आगे जाकर के काफी पॉजिटिव होना चाहिए। पर पूर्ण रूप से अनिश्चितताएं जो है वो गई नहीं है, ऐसा नहीं है, वैश्विक स्तर पर नहीं गई। बिल्कुल। मुंबई से रत्नाकर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रत्नाकर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, सवाल पूछिए। हेलो, गुड इवनिंग मैडम। गुड इवनिंग। मेरा सवाल है कि अभी 1 तारीख को बजट भी हो गया, बाद में मार्केट बहुत नीचे गया वो दिन, बाद में फिर 2000 से ऊपर आ गया, और अभी अमेरिका का ये भी हो गया, ये ट्रेड डील हो गया, उसमें 18% अभी टैरिफ लगा है। लेकिन ये जो डील हो गया, ये 18% टैरिफ परमानेंट रहेगा क्या वो भी अभी ट्रम्प के मन में आएगा तो वो बढ़ सकता है? और जियोपॉलिटिकल जो वॉर है उसमें से भारत पर ही उसका असर शेयर मार्केट पर ज्यादा होता है, तो उसका रीजन क्या है? और आने वाले वीक में, आने वाले महीना में कि ये जो रिटेल इन्वेस्टर है उन्होंने क्या किसमें ज्यादा ध्यान रखना चाहिए? और चलिए रत्नाकर जी, आपने जो भूमिका बांधी अपने प्रश्न की, उसमें आपके वैसे देखा जाए तो प्रश्न का उत्तर भी आ गया है, हम उसको दोहराना नहीं चाहेंगे। बिल्कुल, डील हो गई है, बहुत अच्छी बात है। देखिए कल को क्या होना है इस पर कमेंट करना तो सब किसी के भी लिए बहुत कठिन होता है जी। क्योंकि वैश्विक परिस्थितियां, जो वर्ल्ड इकोनॉमिक ऑर्डर, जियोपॉलिटिकल ऑर्डर बहुत तेजी से बदल रहा है। तो मुझे लगता है उसमें कुछ भी हम निश्चित तौर पे कह दें कि अगले 5 साल तक, 3 साल तक या 2 साल तक भी ऐसा ही रहेगा, ये कहना तो बहुत कठिन होगा। आपने दूसरा जो सवाल पूछा रिटेल इन्वेस्टर्स का कि उनको किन सेक्टर्स पर नजर रखनी चाहिए, मुझे लग रहा है रिन्यूएबल एनर्जी एक सेक्टर है, डिफेंस सेक्टर है। भी आपसे पहले अमित थे दिल्ली से, उन्होंने भी यही बात पूछी थी। मुझे लग रहा है डिफेंस सेक्टर में अगर आपको अच्छे वैल्यूएशंस मिलते हैं तो आप उस पर अभी भी दाव लगा सकते हैं। पर असल में हो क्या रहा है, प्राची और राजेश और दीपशिखा तो आज आई हैं, उनको भी मुझे जो नजर आता है, आप बताइए सहमत हैं कि नहीं, कि लोग इन्वेस्टर बनकर आते हैं मार्केट में, बड़ा लंबा नजरिया रख के आते हैं, और आजकल ये जो एप्स हैं आपको मोबाइल फोन पर रेट्स दिखाते रहते हैं और ट्रेडर बन जाते हैं। दिन में जब आप 3 बार रेट्स चेक करते हैं तो आप अपना प्रॉफिट किसी साइकोलॉजिकल होता है, जब आप बार बार रेट देखेंगे तो कहीं एक ख्याल स्ट्राइक करेगा कि बेच के निकल जाएं।
तो इसमें अगर लंबा नजरिया रत्नाकर जी आप बना के रखेंगे, FMCG भी मुझे बुरा नहीं लग रहा है, और मुझे जो ग्रीन एनर्जी से संबंधित कंपनियां हैं वो भी बुरी नहीं लग रही हैं, तो आप उसमें अच्छी वैल्यूएशंस वाली कंपनी खरीदिए, और चॉइस ऑफ कंपनी बहुत दुरुस्त होना चाहिए। कई दफे जो सेक्टर चढ़ रहा होता है उसमें भी किसी ऐसी कंपनी में कई बार फंस जाते हैं जिसके फंडामेंटल्स बहुत अच्छे नहीं होते। मैंने आपको याद होगा, प्राची को याद होगा, मैंने लड़का लड़की जब पसंद करने जाते हैं रिश्ता, उसकी बात करी थी कि कैसे करा जाता है। जितनी शिद्दत से आप रिश्ते की अरेंज मैरिज में आप इंक्वायरी करते हैं, अगर उतनी शिद्दत से आप कंपनी चूज करें तो मुझे लगता है यू कैन नेवर गो रॉन्ग। खानदान कैसा है, लड़का लड़की कुछ कमाते हैं कि नहीं कमाते, कितने पढ़े लिखे, मौलिक उदाहरण है, कोई केस तो नहीं उन पे चल रहा है, इनकी समाज में इज्जत कैसी है, वगैरह वगैरह। ड्यू डिलिजेंस। हाँ, ड्यू डिलिजेंस मैं देखिए मैं शादी में तो छोटे निवेशक जो है अक्सर जो है भावनाओं में बहुत बह जाते हैं। बिल्कुल भावनाओं। तो मुझे लग रहा है कि बहुत सोच समझ के अगर आप कंपनी पिक करते हैं रत्नाकर जी, और चढ़ते हुए सेक्टर में करते हैं, तो उसमें आपको नुकसान नहीं होगा। ये सभी ठहर कर निवेश करते हैं। We move on to our next caller from Delhi. R.S. Dhaya, warm welcome. Please ask your question. सर नमस्कार। नमस्कार जी। कोहली जी को नमस्कार सर। नमस्कार भैया साहब। कोहली जी से मेरा क्वेश्चन है कि अभी US इंडिया ट्रेड डील हो गई, मोस्ट ऑफ द नेगेटिव फैक्टर्स आर ओवर, हाँ जी, और जियो पॉलिटिकल सिचुएशन तो कभी सुधरने वाली है नहीं। हाँ जी। अभी विद दिस सिचुएशन विल द सेंसेक्स एंड निफ्टी विल गिव 15% रिटर्न इन दिस कैलेंडर ईयर? ढैया साहब, आपके आपके सवाल में ही आपका जवाब छुपा हुआ है। आपने दो परस्पर विरोधी बातें करी और बिल्कुल सटीक करी कि भारत में सारे फंडामेंटल्स अच्छे हैं, ट्रेड डील हो गई, बजट अच्छा आया, सब कुछ अच्छा है, और दूसरी तरफ तो दो विपरीत हवाएं इस समय स्टॉक मार्केट में चल रही हैं। एक गर्म हवा, एक सर्द हवा है। तो मौसम कैसा है आप गर्म सर्द चूज कर सकते हैं। जहां भारत के फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रांग है, जीडीपी अच्छी है, सारे हमारे आर्थिक पैमाने बहुत अच्छे करें, दूसरी तरफ अंतरराष्ट्रीय हवाएं जो हैं वो कभी कभी विरोधी चल जाती हैं, वहां पर सिचुएशन बहुत वॉलेटाइल है। तो भैया साहब, आपके सवाल का मैं सीधा जवाब दूं, जब हमारी हवा तेज होगी मार्केट चढ़ेगी, जब ओवरराइडिंग अंतरराष्ट्रीय जियोपॉलिटिकल जियो इकोनॉमिक न्यूज तेज होगी तो मार्केट नीचे आ रही है। और आप देख रहे हैं कुछ हो भी ऐसा ही रहा है, कभी मार्केट ऊपर जाती है, इतनी वॉलेटाइल हो रही है मार्केट, ऊपर नीचे। बिल्कुल, आप देखिए, आपने कहा 15% रिटर्न देगी कि नहीं, हम कोई परसेंटेज तो यहां पर स्पेसिफाई नहीं कर सकते, पर हाँ लंबे वक्त के लिए जो निवेशक मार्केट में बना रहता है, ऐसा अमूमन देखा गया है कि वो कभी नुकसान नहीं उठाता है। बिल्कुल। मुंबई से मनोज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनोज जी, अपना सवाल पूछिए। नमस्कार, मार्केट मंत्र की टीम को अभिनंदन। शरद जी, मेरे दो सवाल है जी। पहला सवाल है REIT RITS जी क्या होते हैं जी, इसमें इन्वेस्टमेंट किस प्रकार किया जाता है जी, और इसके अंदर डिविडेंड जो आता है वो टैक्सेबल होता है या टैक्स फ्री होता है? जी, चलिए। और दूसरा सवाल IT सेक्टर के लिए आगे 3-4 साल आउटलुक कैसा रहेगा? चलिए, आपके पहले सवाल पे आते हैं। आपने रीट्स की बात करी, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट इसका नाम होता है, और ये एक प्रकार का रियल एस्टेट म्यूचुअल फंड होता है। बहुत सारे लोग, एक ट्रस्ट बना दी जाती है, उसके आगे एक SPV स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाया जाता है। उस कंपनी के जरिए ये कंपनी क्या करती है कि रियल एस्टेट के एसेट्स खरीद लेती है। उदाहरण के तौर पर, हम क्योंकि नाम नहीं लेते हैं, मान लीजिए कुछ ऑफिस स्पेस खरीद ली, और बड़ा मजेदार है, बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आप 10-20 हजार से प्रॉपर्टी तो ले नहीं सकते हैं, तो आप बहुत सारे लोग मिलकर लेते हैं, प्रॉपर्टी आ जाती है, उससे जो किराया आता है, मान लीजिए जो ऑफिस को किराए पे चलाया उसको डिविडेंड के रूप में बांट दिया। यही नहीं, अगर वो प्रॉपर्टी कल को अप्रिशिएट कर जाती है और उसको बेचा जाता है तो उसके भी रिटर्न्स बकायदा सबको दिए जाते हैं। डिविडेंड इसका मनोज बिल्कुल टैक्सेबल है, और कई तरीके का इसमें रिटर्न आता है, कैपिटल गेन का रिटर्न आता है, डिविडेंड का रिटर्न आता है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जो लोग छोटे पैसे से प्रॉपर्टी नहीं ले सकते हैं उनके लिए रीट और इनविट, दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट भी है, उसमें वो निवेश कर सकते हैं। दूसरा, आपने IT सेक्टर अगले 4-5 साल के लिए देखिए, जो IT कंपनीज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में और अपनी स्किल अपग्रेडेशन यानी कि मशीन लर्निंग, जो इन टेक्नोलॉजीज में जो IT कंपनीज निवेश कर रही हैं मनोज, वो कंपनीज का भविष्य मुझे उज्जवल दिखता है। पर जो कंपनीज वही रूटीन बैक एंड काम करती हैं या कोडिंग का ही खाली काम करती हैं, रेपिटेटिव काम करती हैं, वहां पर हो सकता है आगे जाके उनको वैल्यूएशंस में परेशानी आए। श्रोताओं, आइए जाने कि ये सप्ताह हमारे लिए आर्थिक स्वरूप में कैसा रहा। लगातार दूसरे सप्ताह भारतीय शेयर बाजार में तेजी देखी गई। देश के प्रमुख शेयर सूचकांकों में लगभग
1.5% की वृद्धि हुई। अमेरिका भारत व्यापार समझौते की घोषणा से बाजार में उत्साह की लहर चल पड़ी। साथ ही आरबीआई की मौद्रिक नीति के नतीजों के कारण भी सूचकांकों में उछाल नजर आया। सप्ताह के दौरान 1311 अंक यानी 1.6% बढ़कर 83,580 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 373 अंक यानी 1.5% बढ़त के साथ 25,694 पर बंद हुआ। विस्तृत बाजार में बीएसई मिड कैप इंडेक्स में 1.6% और बीएसई स्मॉल कैप इंडेक्स में 1.2% की बढ़त दर्ज की गई। अंतरबैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया लगातार 3 सप्ताह की गिरावट का सिलसिला तोड़ते हुए सप्ताह के दौरान ₹1.33 मजबूत होकर कल सप्ताह के अंतिम कारोबारी सत्र में 90.66 पर बंद हुआ। और भिलाई से हमारे साथ रवि जुड़ रहे हैं। रवि जी, कृपया अपना सवाल पूछिए। नमस्ते मार्केट मित्र और नमस्ते। दोनों एक्सपर्ट्स को मेरा नमस्कार। नमस्कार। शरद जी से खास मैं पूछना चाह रहा था कि ये संकट के बादल के परिप्रेक्ष्य में ट्रम्प फैक्टर के संदर्भ में ये पूछ रहा हूँ कि $500 बिलियन का जो ट्रेड है, इसके कंपैरिजन में भारत का पूरा रेस्ट ऑफ द ट्रेड, वर्ल्ड ट्रेड जो होगा बाकी, उसका कितना परसेंटेज है, क्या कितना परसेंटेज बढ़ेगा और कितना बड़ा फैक्टर होगा ट्रम्प फैक्टर? क्या देखिए रवि जी, जो $500 बिलियन की बात की जा रही है, इस पे कई सारे अटकलें लगाई जा रही हैं। मुझे लगता है एक तो ये बहुत फ्यूचरिस्टिक नंबर है। ऐसा नहीं कि हम कल या इस साल के अंत में $500 बिलियन कर दें। 5 साल में करना, 5 साल में, अभी 2030 तक का हम टारगेट रखें। देखिए, जब भी कोई टारगेट रखा जाता है तो ऐसा नहीं होता कि हमें कोई 2030 में इस माइलस्टोन तक पहुंचना। एक फ्यूचरिस्टिक बात की जा रही है, एक ऑप्टिमिस्टिक आशावादी दृष्टिकोण रखते हुए ये सारी बात करी जा रही है। और अगर भारत अभी देखिए, और मैंने तो बड़ी इंटरेस्टिंग, आज मैं एक प्लेटफॉर्म पे था, मैंने इसी से संबंधित दीपशिखा बात करी, आपके भी मैं इस पे कमेंट्स चाहूंगा कि जो किसी देश से इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है वो डिमांड सप्लाई पे बेस्ड होता है। हम उतना ही संभाल लेंगे जितना हमें जरूरत है। मुझे लगता है अल्टीमेटली तो मार्केट इसको डिटरमिन करती है। बिल्कुल। और लेकिन शरद जी, अगर आप ये ट्रेड डील देखें तो दोनों देश जो है ड्यूटी जो है घटा रहे हैं। दोनों देश ड्यूटी इसलिए घटा रहे हैं क्योंकि अपने एक दूसरे के प्रोडक्ट्स को वो इनकरेज करेंगे, ट्रेड को। तो जाहिर सी बात है कि दोनों के ट्रेड को जो बूस्ट मिलेगा। लेकिन हाँ, जैसा कि आपने कहा, ये फ्यूचरिस्टिक नंबर है। ये दोनों देश आशा करते हैं कि यहां तक पहुंचे। Moving on, the US stock surged yesterday after a big turnaround that saw the Dow closing above the 50,000 mark for the first time ever. The Dow surged 2.5% or 1,207 points to close at 50,116 yesterday. The broad S&P 500 rose 2% or 134 points to 6,932, and the Nasdaq gained 2.2% or 491 points to 23,031 after dropping 4.5% in the past 3 sessions. शरद, दीपशिखा, कार्यक्रम में आने और चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने तमाम सवालों के जवाब दिए, हमारे श्रोताओं को भी लिए हमने सवाल में, और आपने जवाब दिए, इसका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार। Thank you, Deepshika and Sharad. And before we close, the headlines once again. India and US announce interim trade agreement. Prime Minister Narendra Modi says India-US trade deal framework will open new opportunities for Indian farmers and entrepreneurs. And domestic benchmark indices jump about 1.5% this week. And in the US, the Dow crosses 50,000 mark. That's all we have in this edition of Market Mantra. Till tomorrow, goodbye. इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें। Market